Okay, students, first of all, good morning, all of you. And how are you glad that everyone is absolutely fine? I believe, I am also fine. And you are welcome in learning of English subject as well language, particularly for the students who are not present here and they are at their house because of health issues and problems. And everyone is welcome completely. So I will wait only for 3, 4, 5 minutes for the students. So please try to connect everyone. And topic, you don't know today's new topic, and we have completed display advertisement in the lecture, and today we shall start definitely a new topic that is called report. Report is a very different and very interesting topic to all. Yes, so please attention, try to watch the video with consciousness, with fully intention. Yeah, so can I start? Okay, the title plays report. It's very important to all. Not only 9th class, 10th, 11th, 12th, in all classes. It has its own different part. And markers are not available. Only one. Okay, so try to use it that it will work well. What do you think that you can arrange from there? And the students are free? No? Yes. Please go and ask about the markers. Take only 3 maximum minutes, okay, as fast as you can do it, okay? But before starting lecture, please, you have to arrange markers. It's your own responsibility. Because these are the writing tools. Without it, a teacher, what can do? So, I think that before this lecture, you have already attended one more lecture. So without markers, why did they do? Yeah. And how can it possibly? They did not use markers here? But in English lecture, it's very important. Without it, we cannot do anything. And I offered you a marker long time ago. Long time ago. You lost? No? New marker. You take back. We have taken back. Bag. Sir, And you bags have are at taken your back. homes. Sir, you have taken back. Bag. But not is here, so what can I Sir, say? you have put it in 12th class. Good, thank you for your dedication, for your intention to arrange us. Okay, students, please focus about the report. The report. You can imagine that without this department, what can we do? The report. Report, what is report? Very simple concept. Report. Report means solution, information. Yes? If you want to know about it practically as well theoretical, but we always prefer practical clarity of any kind of concept, because practical clarity we can connect our behavior and we can retain for a long period of time. So information solution. Notices are also considered in the category of information and report, but a little bit difference here, because reports are always written in past. Okay, because reports are based on the foundation and you can see the situation of any kind of event, incident, episode. Yes, it may be based on news, message, and you can say that experience, experiment, any kind of situation and episode, event, incident, that's all.
So report in Hindi, you know that सूचना, and it may be on the situation, of any kind of, you can say that good, bad, critical, sensitive, doesn't matter that only in one type of situation there will be, okay. It will be on the situation, यह हो सकती है किसी भी परिस्थिति पर, okay, of any kind of edge, event, incident, episode, news, messages, experience and experiment. Okay. It is, you can say that the collection of information, gathering of information by a person, that is, you can say that media person, press reporter, anyone, but the person must be related to the field, a field that is very highlighted to collect information, you can say that to gather information and to design a story on any kind of situation. For example, if there is a situation, you can say that happen any kind of situation on the highway, okay, the situation already happened, all right, but a media person reached there after some time and he got all the information of the situation from the people who were there, okay, and design a story and design a report, prepare a report and make a report on that particular situation that had already happened in past. But report always written in past because these are based on already happening situation. Yes, it cannot be live at in present. जैसे कि कोई भी सिचुएशन होती है कहीं भी, किसी भी प्रकार का कोई गुड इवेंट, बैड इवेंट, कोई अच्छा इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट, कुछ भी रोड एक्सीडेंट या फिर कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो वो जब घटना कंप्लीट हो जाती है तो उसकी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, उसको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पब्लिश कराने के लिए एक जो मीडिया पर्सन होता है, ठीक है, एक जो न्यूज़पेपर के जो एंकर होते हैं उन तक पहुंचाने के लिए जो फील्ड में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो वो उस सिचुएशन से संबंधित सारे क्लूज इकट्ठे करते हैं, ठीक है, जो वहां पर प्रेजेंट पीपल थे तो उनसे वो पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, ठीक है, तो वहां से वो एक स्टोरी बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं. फर्स्ट दे क्रिएट ए स्टोरी बैकग्राउंड, ओके, देन डिजाइन अ रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट बनाते हैं और उस रिपोर्ट को फिर टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर या स्कूल मैगजीन. मान लीजिए कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी ओकेजन है, तो वो ओकेजन एक इनसाइड कैंपस होता है, स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा, ओके, तो वो जो रिपोर्ट बनेगी, वो रिपोर्ट यू कैन से दैट पब्लिश होगी स्कूल मैगजीन के अंदर. यस, कोई पब्लिकली कोई इंसिडेंट होता है तो वो पब्लिश होता है न्यूज़पेपर के अंदर. यस, स्टूडेंट एडिटर भी हो सकता है स्कूल मैगजीन के लिए, और किसी पेपर का, न्यूज़पेपर का कोई भी एस्टीम डेली जो होता है उसका भी कोई रिपोर्टर हो सकता है. यस, तो ये डिफरेंट सिचुएशंस कंसीडर की जाती है. एक सिचुएशन होती है स्कूल कॉलेज के लिए जो कि मैगजीन और पेपर के लिए होती है. दूसरी सिचुएशन होती है पब्लिकली, जिसको हम आमतौर पर किसी भी एस्टीम डेली में पब्लिश कराते हैं, यानी कि एक लिमिटेड एरिया एंड बियॉन्ड लिमिटेशन एरिया. एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो आप न्यूज़ चैनल पर देखते हो, रिपोर्टिंग की जाती है कि जैसे देयर आर 3 कार्स या देयर वर 3 कार्स which were collided to one another, okay, that was called brutal situation, okay, and you can say that massacre, एक शब्द होता है massacre, MKWSCR, इसको बोलते हैं बहुत ही भयानक दुर्घटना, भीषण दुर्घटना जिसको आप बोल सकते हो. तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना होती है तो वो यदि काफी सेंसिटिव है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाती है प्रेस रिपोर्टर के द्वारा. उसमें से सारी वो सिचुएशन, सारे क्लूज, सारे जो फैक्ट्स होते हैं वो ढूंढे जाते हैं और उससे एक 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 60 वर्ड्स की एक क्रिटिकल तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट.
ठीक है। रिपोर्ट किस चीज पे बेस्ड होती है? पास्ट इवेंट पर बेस्ड होती है, जो एक्शन हो चुका है। क्लियर सबके लिए? नो डाउट। तो रिपोर्ट है क्या चीज? रिपोर्ट इज एन इंफॉर्मेशन, एक सूचना होती है। एंड नोटिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। नोटिस भी सूचना होती है, एंड रिपोर्ट इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन इज इन इटसेल्फ इंफॉर्मेशन होती है। तो you can understand about it that a written or oral declaration, a written and oral declaration that is collected or gathered by a person who works in a highly acclaimed newspaper or magazine, you can say that, to be published in newspaper or magazine. Or report is based on the situation of any kind of, you can say that. It may be good, bad, doesn't matter, and it may be a news, it may be a message, okay, and it may be, you can say that, incident, event, episode, experience is also included in it. Experience, experiment. Experience क्या होता है? पास्ट होता है। एक्सपीरियंस प्रेजेंट में नहीं होता है। प्रेजेंट में एक्सपीरियंस किया तो एक्सपीरियंस पास्ट में काउंट होगा कि आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड अबाउट इट। तो एक्सपीरियंस क्या होता है? पास्ट होता है। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट कंप्लीट हो चुका है, ओकेजन सेलिब्रेट किया जा चुका है, तो वो पास्ट में चेंज हो गया। तो उस पास्ट के इवेंट पर जो भी चीजें बनी है, जो भी सिचुएशन रही है, कौन कौन चीफ गेस्ट रहे, वहां पर किस प्रकार सेलिब्रेट किया गया, वो सब चीजें कलेक्ट की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में क्या है? टू द पॉइंट्स which you have to keep in your mind. Some of the points ऐसा लिख सकते हो, some of the points which you have to keep in your mind while writing, designing a report. जब भी कोई रिपोर्ट आप डिजाइन करोगे तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। वैसे प्रैक्टिकली तो मैं पॉइंट्स आपको बता ही चुका हूं, लेकिन थ्योरेटिकली आप देखिए, जैसे कि a report must be to the point. कोई रिपोर्ट टू द पॉइंट होनी चाहिए। We cannot involve and write irrelevant matter in it. Okay, and we cannot discuss while writing a report hackneyed phrases and extra exaggerations and superfluous matter. Okay, we have to avoid all these things. So a report must be to the point. It must be simple and based on balanced tone. ये एक संतुलित टोन पर आधारित होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। If you have designed a report, when people observe and heard about the report, they never consider that you have designed yourself and you have added something from yourself. Okay, because the situation cannot be so critical and using words cannot be so, as you can say that, in the way in which the person has produced, and you can say that used. So the clarity of the report must be as simple, as balanced tone that everyone can believe. Okay, and the written declaration can impress the mind of the people first time. कुछ ऐसी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसमें कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी ज्यादा एग्जैजरेट किया हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ बड़ा सा के नहीं लिखना है, उस चीज को सुपर पावर में कन्वर्ट नहीं करना है, या उस चीज को फिर आप मेटाफोरिकली नहीं कर सकते हो, या फिर उस चीज में सुपरफ्लुअस की जो सेंस बनती है, अतिशयोक्ति का जो भाव होता है, वो नहीं कर सकते आप लोग। एक ऐसी खबर होनी चाहिए, ऐसी रिपोर्टिंग होनी चाहिए जो रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, यानी कि द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज व्हाट? द मेन पार्ट
The main part of the report is the narration. What narration? One description is the narration of the event. The main part of the report या of a report, किसी भी report का जो main हिस्सा होता है वो narration होता है of the event which took place in the past. कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन रिपोर्ट का जो अहम हिस्सा होता है वो took place in past, वो past में ही होता है. यानी कि if the narrator of a report is narrating the situation in past, that is good, because no one can narrate any report in present, because situation already happened and we reached there late and we collected the informations, then we convey, okay, then we narrate the situation if there was happened, okay, and how many people died there. तो इस प्रकार से situation आपको died, not you can say that how many people died there, okay, we cannot predicate क्योंकि already action हो चुका है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और सबसे important चीज क्या है कि while writing a report you must avoid exaggerations and superfluous matter. जब भी रिपोर्ट लिखो तो you must avoid, आपको avoid करना होगा exaggerations and superfluous matter, या फिर exaggerations and superfluous matter should be avoided. You must avoid exaggerations and superfluous matter. ये हमेशा आपको avoid करना पड़ता है. Your report must be based on relevant information, not irrelevant. So a report must be to the point. It must be simple and based on balanced tone. The main part of the report is the narration of the event which took place in past. Or you must avoid technical phrases, repetition, irrelevant matter, exaggerations, and superfluous matter of the report. तो ये चीज आपको avoid करनी पड़ती है. And while writing a report, students will be asked to write a report, prepare a report in about 40, starting minimum 40 words, 40 to 100 words, according to the level of class. In 9th class, it will be asked about 40 words. In 10th class, 50, 60 words. 11th, 12th class, 80 to 100 words. Okay. So according to the level of classage, the number of the words can be increased. Of course, increased. So you will write only about 40 words. Yes? And I think that you have known about the word limit of advertisement, 40 to 50, maximum 50 words. And 40 words, I don't think that it's very difficult to write and create 40 words about any situation. बहुत simple होता है. तो ये होता है report. Report can be design, report can be कोई न्यूज हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई एपिसोड हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, सेंसिटिव हो सकता है, सिंपल हो सकता है. तो किसी प्रकार की सिचुएशन को हम रिपोर्ट बना सकते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड एक्शन हैड हैपेंड, जो घटना वो हो चुकी थी उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग होती है. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, if a reporter is there, the first and basic need to design to prepare a report. First, the reporter will create the story, will create the background of the report. Yeah, the person will decide, you can say that, imaginary characters of the story. Okay, and the person can imagine about the place of the incident. Okay, and the person can make you sure, या फिर can make you satisfied about the situation through animated pictures. Okay, आजकल तो एनिमेशन से समझाते हैं. एक्सीडेंट हुआ तो एनिमेटेड क्लास बनाई जाती है, रोड दिखाया जाता है, उस पर एक्सीडेंट सिचुएशन बनाई जाती है. तो किसी भी तरीके से the basic and first requirement and first challenge
before a reporter, press reporter, first the person will create background of the story, background of the report, then design report. ऐसा नहीं है कि गाड़ी टकराई और मौत हो गई, उसका एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा उसको, सिचुएशन बनानी पड़ेगी उसको, ताकि लोग उसको स्टेप टू स्टेप समझना स्टार्ट करें. तो बैकग्राउंड ऑफ द रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी देखना पड़ेगा. और what limit 40? It's very simple, 40 words. Then I'm going to start and I will offer you a situation and you will think and ponder of the situation. देखिए अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको डिस्कस करना है, सोचना है कि इससे क्या लिखा जा सकता है. क्लियर हो गया? Okay, theoretical portion is going to complete. Nothing is very difficult and important about it. Very simple. Report is report. Okay. If anybody asks you that what is report and what you know about report, क्या बता सकते हो आप? Report is an information. Report is an information, and it may be based on any kind of situation. Any you can say that news, information, incident, event, episode, experiment, experience, सब चीजों पर based होती है. But condition is that it will be written in past only. किस तरीके से? Past. The main part of the report is the narration which took place in past particular. यानी कि जो मुख्य हिस्सा होता है रिपोर्ट का, तो पास्ट में ही होता है, क्योंकि घटना हो चुकी है, अब हम वहां पहुंचे हैं, अब हम उसके बारे में लिखेंगे, तो हम पास्ट में ही डिजाइन करेंगे उसको. उस घटना की वजह से प्रेजेंट में पैनिक आ गया है, तो वो तो प्रेजेंट बताना पड़ेगा. यानी कि द सिचुएशन हैज क्रिएटेड पैनिक इन द सिटी. ओके, तो उससे पैनिक हो गया है. तो इस प्रकार की चीजें इसमें होती हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन? नरेशन होता है वर्णन किसी भी चीज का. नरेट, नरेट वर्ब है वर्णन करना होता है किसी भी चीज को, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना. और नरेटर ये नाउन है स्टूडेंट, ये वर्णन करता जिसको बोलते हैं ना, वर्णन जो करने वाला इंसान. ठीक है, यानी कि इट इज कंसीडर्ड इन द क्लास ऑफ ग्रामर नाउन. एंड नरेटर, नरेट वर्णन करना वर्ब, एंड नरेशन इज आल्सो noun. The narrator has narrated. The narrator has narrated about the account, about the situation. Account का मतलब क्या होता है? Account भी क्या होता है? वर्णन. जैसे मैंने कहा an eyewitness account, एक आंखों देखा वर्णन of you can say that of a chain snatching इंसिडेंट. किसी भी चेन को यानी कि छीनने का, उसको झपटने का जो आंखों देखा हुआ ना, उस पर आपको सिचुएशन बनानी है, उस पर रिपोर्टिंग करनी है, जैसे इस प्रकार से होता है ना. तो क्लियर हो गया है. पॉइंट्स क्या क्या ध्यान रखने होंगे आपको कि फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट बैकग्राउंड ऑफ एनी रिपोर्ट. ठीक है, if you want to create a brief report, then first you will decide what will be the background of the report, and the report always written in past. A report can be written in the formal, you can say that formal tone, yeah, yes, in balanced tone and to the point. We cannot indulge and we cannot include in it irrelevant matter. Okay, it will be based on irrelevant matter. And word limit of a report must be 40 words. 40 words are prescribed for a report. Yes? And I think that you have to avoid all superfluous matter, and you can say exaggerations and hyperbole things and baseless things you must avoid. Yes? पेज का आपको ध्यान रखना है. तो हर चीज में आपको वार्न किया जाता है. आप लेटर लिखो तभी वार्न करते हैं कि कोई भी हैकनिंग फ्रेज नहीं लिखना है, कोई रिपीटेशन नहीं लिखना है, कोई भी इस प्रकार की जो बेसलेस चीज होती है वो नहीं लिखनी है. ठीक है, और एक्सरेट होने वाली बात कोई मेंशन नहीं करनी है. ठीक है, आई थिंक दैट इज क्लियर. अब देखते हैं. No one can ask you any question about the theoretical portion of report. It is only on for your knowledge. Yes? ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि आपसे पूछेंगे कि प्लीज मेंशन अबाउट रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट एंड द मेन पॉइंट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड.
ऐसा कुछ नहीं होगा. But it is very important before starting any topic, we have to know surrounding, yes, and basis, and you can say that some of the rules of the topic. Of course, it is simple. Only forward. You will definitely get outline. It's very important. And outline, your content must be inside the outline. And advertisement, report, notice, each type of composition should be written inside this portion. Yes. Okay. So title. If I say different many situations. If I mention about situations, so first is that a blood donation can make the situation an incident. First, you know event, episode, incident, accident, इवेंट क्या होता है? इवेंट एक घटना होती है. It may be good and bad. If I say that it was the best event of my life, yes, it was the bad event of my life, worst event of my life. Episode is also घटना of any imaginary, you can say the situation. Okay, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है. जैसे आप बोलते हो कि सीरियल का एपिसोड नंबर 34. So 34 episode of the serial is imaginary. Okay, and episode घटना ही होती है और घटनाएं अच्छी बुरी दोनों हो सकती है. If you want to direct the event in good way, then you have to mention before event good event. Okay. If you want to write it negative way, then you have to mention there bad event, good bad, important for. लेकिन incident is also घटना. ये भी good bad हो सकती है. It was very beautiful incident. Yeah, it was very memorable incident of my life, which I expressed. So accident is always bad, but never get about it that accident is only happened on road. ऐसा कभी नहीं कि रास्ते में ही एक्सीडेंट होते हैं. वो तो रोड एक्सीडेंट होते हैं. ठीक है. आप कहीं भी कुछ होता है, गाड़ियां टकरा जाती हैं, आप बोलते हो कि मैंने एक्सीडेंट देखा. I saw या I observed the situation of accident. ऐसा नहीं है, वो तो रोड एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट नॉर्मली किसी की लाइफ में कोई शॉकिंग न्यूज. If a person is died, you can say that. It is a bad incident, shocking incident, but it is an accident. Okay, ये एक दुर्घटना है. Accident मतलब बुरी घटना है. If a person has lost his golden chain, if a person has lost very precious thing of his life, then that is the accident. Okay, a bad incident. अब गाड़ियाँ collide होगी. There are two cars on the highway. They collided to each other. वो road accident. So ink is not available here. Now can we go to arrange ink? नहीं, अभी आप ऐसा पूछोगे कि सर क्या हम जा सकते हैं अरेंज करें तो असाइनमेंट में खराब हो जाए. तो अभी याद रखिए ना, जब भी आप पढ़ने में लेक्चर लगे तो सबसे पहले चेक किया मार्कर्स को और एक इंक है ना, तो ले पीछे से फटाफट से इंक ले.
depression, suppress, and stress, different kinds of problems in life. SUPPRESS, SUP, and stress, distress, disappointment, कितनी सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। वैसे रवि आपने ये क्यों लिखी? ये क्यों लिखी है? ये एक्सीडेंट की बात करें ना, जैसे एक्सीडेंट, इंसिडेंट, तो एक्सीडेंट में यही तो होता है। एक्सीडेंट क्यों होता है? आमतौर पर एक्सीडेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होता है। काफी सारे रीजन तो काफी सारे हो सकते हैं, वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर मेंटली जो बैलेंस की बात होती है उसकी वजह से आमतौर पर होता है। About our thinking and attitude about the situation. इसको बंद कर, so that we can hear only on relevant. Okay. I want to research on this topic. हम जानना चाहेंगे. I would like to know more and more about what is stress, what is stress and distress. You can see the different type of disappointment and gloom. कि क्या होती है सारी चीजें, इनका लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है? Depression is the depression is, you can say that, not an ordinary problem. It is very, very, you can say that, fatal. Your school NSS unit, आपके स्कूल का जो NSS यूनिट है, यानी कि एक ऐसा यूनिट होता है जहां पर आमतौर पर कोई भी चैरिटेबल वर्क होता है या फिर कोई भी एक सोशल फेवर वर्क होता है ना, सोशल फेवर में कोई काम होता है, सामाजिक जो कार्य होता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन का है, अब एन नेशनल भी कंसीडर कर सकते हैं इस चीज को। एस से तो स्कूल या फिर कॉलेज में तो कॉलेज में कभी क्या यूज करेंगे उसको, स्कूल तो क्या बोलेंगे, लेकिन स्कूल कैडेट में ही होता है आमतौर पे, कॉलेज में होता है एनएसएस कैंप लगते हैं, होते हैं। तो वो कैंप किस लिए होते हैं ना, वो कैंपिंग इसलिए की जाती है ताकि फॉर द betterment of the school, you can say that स्कूल या फिर कॉलेज कमिंग स्टूडेंट्स, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रोस्पेक्टस पर अच्छे से काम किया जा सके, बेहतर सोचा जा सके उनके बारे में। इस यूनिट का कोई एक काम नहीं होता है, इससे बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। स्कूलों में रेड क्रॉस सोसाइटी होती है, कॉलेज में भी होती है रेड क्रॉस सोसाइटी, RCS, तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी भी एनएसएस यूनिट के अंदर में काम करती है। मान लीजिए आपके स्कूल की एनएसएस यूनिट है, उसने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो आपके डिस्ट्रिक्ट की रेड क्रॉस सोसाइटी जो ब्लड डोनेशन के जो कैंपों को ऑर्गेनाइज करती है, तो उससे परमिशन लिया और उसको अपने स्कूल में इनवाइट किया, तो वहां पूरा मैनेजमेंट इन्होंने किया। तो एक ऐसी हम्बल, एमिएबल, एक सोशेबल एक कमिटी होती है, यूनिट होती है, जो हमेशा एक सोशल एरिया में काम करती है और जो मैस पीपल होते हैं उनके फेवर के काम करती है। ये एजुकेशनल वर्क जो होता है उससे थोड़ी हटकर होती है, जैसे कि कोई स्पीच तैयार करनी है, ओके, और किसी प्रोजेक्ट पर कुछ पेपर्स, रिसर्च पेपर तैयार करने हैं, या फिर किसी इंप्रूवमेंट पर कुछ बातें करनी है, तो एक हॉल होता है, वहां पर सभी बैठ जाते हैं और जो उसमें पार्ट, जो उसके मेंबर है या फिर जो उसका चीफ है, वो अपनी बातें रखते हैं। तो बहुत सारा इसका एक स्टफ होता है, बहुत सारे काम करते हैं, और इसके फुल फॉर्म से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, वैसे एग्जैक्ट देखा जाए तो अलग अलग तरह से यूज कर लेते हैं।
सोशल सर्विस से रिलेटेड बात कर लीजिए, स्कूल सर्विस, कॉलेज सर्विस का काम करती है, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, नेशनल स्कूल्स, नेशनल सोशल सर्विस, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा, ओके, इस तरह के काम करती है। एजुकेशनल पार्ट में रहकर भी काम कर सकती है, और सिटी के अंदर जो भी यू कैन से दैट एक नगर पालिका से लेकर हाईएस्ट लेवल तक तो कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट होती है। लेकिन स्कूल कॉलेज में एसएस होती है, एक एनसीसी होती है, वो एनसीसी क्या होती है, एनसीसी, एनसीसी कैडेट वो होता है जो कि यंग ट्रेनिंग तैयार करते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे के लिए, ओके, परेड के लिए उनको तैयार करते हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, या उनके अंदर एक हैबिट डेवलप की जाती है डिसिप्लिन की, और टुवर्ड्स आवर कंट्री रिस्पेक्ट की हैबिट डेवलप की जाती है, या फिर और न्यू रिक्रूटमेंट जो आर्मी अपने देश की है उसके प्रति जो रिस्पेक्ट होती है वो भाव सिखाया जाता है। देखा होगा आपने जो एनसीसी कैडेट के होते हैं, यूनिफॉर्म बच्चे वो तैयारी करते हैं, तो इनका कार्य स्कूल के एजुकेशन पार्ट से हटके होता है। कोई सोशल सर्विस के लिए काम करते हैं, कोई कंट्री की आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एनएसएस यूनिट सोशल सर्विस करती है, सोशल बेस पर काम करती है, एनसीसी भी सोशल बेस पर करती है, लेकिन ये जो कंट्री की जो प्रोटेक्टिव जो होते हैं हमारी, यानी जो बॉर्डर पर काम करते हैं, जो आर्मी है, जो सेनाएं हमारी है, फोर्सेस जो भी है, उन फोर्सेस के पार्ट पर काम होता है। एक प्रशिक्षण, एक बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है उसको, एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि हमारा इंटरेस्ट बने और हम उस फील्ड में जाएं। हो गया? तो योर स्कूल एनएसएस यूनिट कौन सा व्हाइट ही डाला क्या इसमें? ब्लैक नहीं लेके आए? ब्लैक ही था, प्लीज इसमें डालो। लगता है ब्लैक ही है। Had organized. Your school and SS unit had organized a blood donation camp. ये एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर चुकी है, लेकिन पास्ट में स्टेटमेंट जाएगी। डोनेशन कैंप तो लग चुका है, डोनेशन कैंप का काम हो चुका है, आपके स्कूल की एनएसएस यूनिट ये कंप्लीटली डन हो चुका है काम। उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। In the school hall, स्कूल के हॉल में ये सब हो चुका है। रफ पेपर से साफ कर लो, इस तरह नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे रहो। तो इसमें देखिए हम हर रोज ही कंप्लीटली डाउन माय हैंड्स एवरी डे, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एज a member of the NSS unit, ग्रुप भी बोल सकते हो, NSS यूनिट भी कह सकते हो, NSS ग्रुप भी बोल सकते हो। आप मेंबर हो, as a member of the NSS group of your school, prepare a report। आप फुल स्टॉप लगा दीजिए या फिर कॉमेसेस को सेपरेट कर दीजिए। प्रिपेयर अ रिपोर्ट इन अबाउट 40 words to be printed in your school magazine। मान के चलिए स्कूल मैगजीन के लिए, और इसे ध्यान रखिएगा, मिनिमम वर्ड्स लिमिट 40 to 100। 40 is prescribed for 9th class, 9th and 10th also, and 60 to 70 11, 80 to 100 in 12th, ऐसे वर्ड रेंज होती है। और reports are always published and printed only on in magazine or newspaper। Magazine of a school and newspaper that you know publicly latest information is storing paper।
तो देखिए ये आपके सामने सिचुएशन है, अब आप कैसे लिखोगे? First you need to understand about the statement, what is being said in it. So your school NSS unit है जो ऑर्गेनाइज कर चुकी है ब्लड डोनेशन कैंप को इन द स्कूल हॉल, हो गया काम। एज अ मेंबर ऑफ द एनएसएस ग्रुप, एनएसएस ग्रुप के आप मेंबर के रूप में आपके स्कूल के एनएसएस जो ग्रुप है उसके मेंबर हो आप। प्रिपेयर अ रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है 40 वर्ड्स में करनी है, टू बी प्रिंटेड इन योर स्कूल मैगजीन, ठीक है? कंप्लीट करके ही जाएगा बच्चों, आज इस टॉपिक को फिनिश करना है तो बस सिलेबस काफी बचा हुआ ना। We are beyond the limitation of time. हम टाइम से परे हैं बच्चों। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, तो यहाँ लिखिए सबसे पहले टाइटल, टाइटल बनाओगे, टाइटल क्या लिखा जा सकता है कि गिव अ स्टेबल टाइटल आल्सो, ऐसे दिया जा सकता है लास्ट में कि एक अच्छा सा टाइटल भी दो। तो कैसे लिखने का तरीका क्या बनेगा? अ ब्लड डोनेशन, इस कैपिटल में लिखना सभी के सभी। इफ यू वांट टू राइट इन कैपिटल, फर्स्ट लेटर लिखो, तो फर्स्ट लेटर पूरा कैपिटल लिख सकते हो आप इसको, टाइटल पूरा कैपिटल लिख सकते हैं। अ ब्लड डोनेशन कैंप बाय द NSS unit. A report. ठीक है, यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। अब ये कैंप कब लगा? आप डेट मेंशन कर सकते हो, डेट आप यहाँ डाल सकते हो कि 17 जुलाई 2000 जो भी है, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? तो लिखिएगा कि ब्लड donation camp was organized in the school hall by the NSS unit. डॉक्टर्स भी थे वहाँ, नर्सेस भी थी बहुत सारे, 3 या 4 डॉक्टर्स या फिर आप लिख लीजिएगा इसमें 5 doctors and 8 nurses of a local civil hospital offered their services for it. इस काम के लिए अपनी सेवाएं उन्होंने दी, ठीक है? अरे डोनेशन का मैटर है तो जितने कैंडिडेट ज्यादा आएंगे तो डॉक्टर्स वैसे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्या इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किस किसने पार्टिसिपेट किया? टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने, ओके? 18 से भी लोग नहीं होगा तो कॉलेज से मतलब कम से कम कॉलेज, ठीक है? लॉजिक पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ ये देखना है कि कुछ स्टूडेंट्स अब वो 18 भी हो सकते हैं, तो आप अपनी क्लास का एज मेजरमेंट देखिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आपकी क्लास में जो वैक्सीनेटेड होने के लिए तैयार हैं, और उसी क्लास में ऐसे भी हैं जो अंडर 15 भी हैं, तो वैसे ही हो सकता है। फुल स्टॉप। A large number of the teachers and students donated blood donate किया। कैसे? खुशी खुशी ब्लड डोनेट किया, ऐसे नहीं कि नहीं दे तो थोड़ा सा लेना, बस नहीं, ऐसे नहीं। with beaming faces, चमचमाते हुए चेहरों के साथ, जैसे बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। And proud hearts, और दिलों में बिल्कुल गौरव भरा होगा कि लीजिए बोतल ले लीजिए। 250 GM से क्या होगा? आप 1000 GM लीजिए। और इधर फिर आप लिख सकते हो कि ABC जो भी है, ABC the member of NSS unit
अगर स्टेटमेंट में स्कूल का नाम भी मेंशन किया गया और मेंबर का भी नाम मेंशन, जैसे मैंने कहा यू आर एबीसी, द मेंबर ऑफ एन एसएस ग्रुप ऑफ योर स्कूल that had organized blood donation camp, तो फिर आप लिखोगे कि एबीसी द मेंबर ऑफ एनएसएस ग्रुप ऑफ XYZ स्कूल। ठीक है, कंप्लीट हुई। अब देखिए फटाफट से नेक्स्ट, यदि किसी कोई किडनैपिंग का केस हो गया, आमतौर पर जो बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके बच्चों को किडनैप कर लेते हैं ताकि कम से कम 1 करोड़ की अमाउंट तो मिलेगी, तो इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग ऑफ कोर्स होगी, और रिपोर्टर भी इतने एक्साइटमेंट में बताता है जैसे बहुत बड़ी खुशी हो रही है, तो ऐसे ऐसे किडनैप हो गया है, आप ध्यान रखिए, अपना संभालिए अपने आप को, कहीं ये केस ये हादसा आपके साथ ना हो जाए। कोई डरा रहा है कि समझा रहा है, पता नहीं चल रहा होगा। मीडिया का रोल अवेयरनेस का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ वो पैनिक बहुत क्रिएट करते हैं, डराते बहुत ज्यादा। एक अच्छा खासा इंसान पूरी फैमिली को डाउट करना शुरू कर देता है, यही तो नहीं हो। यस, कोरोना कोरोना बोल के इतना पैनिक क्रिएट करते हैं कि घर के बर्तनों को टच करते हैं, इस पे तो नहीं बैठा होगा, माइस हैंड वॉश करते हैं। सर आपको ऐसे लगता है? नहीं, ऐसा वो दिमाग में डाल देते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट इतना रिपीट करते हैं कि इंसान खुद को डाउट करने लगता है। लेकिन अच्छे डीड के लिए, नॉर्मल डीड के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है मीडिया का, लेकिन आजकल अब मीडिया ने अपनी हैबिट सुधार ली है, अच्छा काम करने लगी है, अच्छी खबरें देती है। देखिए फटाफट से, you have come to know You have come to know of the kidnapping of businessman's son. आप एक बिजनेसमैन के लड़के की किडनैपिंग के बारे में पता चुका है, रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचने वाले हो। मेंशनिंग, देखिए पूरा लिख लीजिएगा, इसमें समय कम है। मेंशनिंग कुछ भी मेंशन करना है, जैसे कि मान लीजिए को टाइटल मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है, रीजन मेंशन करना है। मेंशनिंग द टाइटल and detail of the incident. इन्होंने कहा कि write a brief report in about 40 words to be printed in the newspaper. To be printed in the newspaper, पेपर हो सकता है या in your newspaper। देखिए मीडिया प्रेस में काम करता है, तो उसका भी तो पेपर है ना, तो to be printed in your newspaper। इंसिडेंट बुरा होता है, घटना है ये, इसमें घटना है ये। अब इंसिडेंट तो समझ गए, घटना है, घटना कैसी है? किडनैपिंग की घटना है, ऑफ कोर्स बुरी है। ऑफ द किडनैपिंग ऑफ अ बिजनेसमैन, यानी कि किडनैपिंग का इंसिडेंट है ये। अच्छा है कि बुरा है? बताइए, बुरा ही तो होगा, ऑलरेडी मेंशन है ना इसमें, तो किडनैपिंग में यहाँ तक कंप्लीट हो गया सब चीजें। देखिए, यू आर अ प्रेस रिपोर्टर, यू हैव कम टू नो, आप जान चुके हो, ऑफ द किडनैपिंग ऑफ अ बिजनेसमैन सन, बिजनेसमैन के लड़के की किडनैपिंग के बारे में आपको पता चल गया है। आपने तुरंत अपना बैग पैक किया और पहुंच गए घटनास्थल के ऊपर, माइक लेके, वो क्या बोलते हैं किडनैप, only 5 minutes I will take, only 5 minutes you have to be। क्या है कि 9th का सिलेबस बचा, मैंने आपसे शायद कहा था, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए, 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा 9th के लिए। 11 ऑलरेडी अपने सिलेबस की रेंज से है, लेकिन नियर अबाउट कंप्लीट हो गई है। 12 कंप्लीट हो चुका है, 11 का सिलेबस भी थोड़ा सा बचा हुआ है, 10th कंप्लीशन के आप ही बचे हुए क्या डिस्कस ज्यादा करते हैं ना, बिजी रहते हो पीछे को। चलिए
mentioning the title and details of the incident, write a brief report. या brief लिखने तो बहुत ही जरूरत नहीं है. Write a report in 40 words to be printed in your newspaper. ठीक है? समझा रहे सबको? Yes, करने इसको? Yes? Yes. देखिए, come to the point, please. Underline, outline लगा लीजिए. Outline. अब देखिए टाइटल क्या बनेगा? बिजनेस मैन सन. यस, क्या करें बच्चों? किडनैप इनसे ये हो गया हमारा टाइटल. बिजनेसमैन का लड़का किडनैप. एक बहुत ही ताजा और लेटेस्ट और बहुत ही सेंसिटिव न्यूज. लेटेस्ट तो है पहली बार और रिपोर्ट. एक रिपोर्ट है तो ये टाइटल पे लिखिएगा रिपोर्ट. अब कब ये सब हुआ देख ले सकते हो. जैसे आपने लिखा कि 15. सर पिछली बार तो आप साइड लिखी थी. नहीं आप समझे नहीं. यहाँ डेट मेंशन करके स्टार्ट कर सकते हो आप. नो प्रॉब्लम. अगर डेट मेंशन करके स्टेटमेंट के अंदर ही मेंशन करनी है तो फिर ऊपर नहीं, मैं स्टेटमेंट के अंदर ही लिख रहा हूं इसको. 15 अक्टूबर ऐसे इसी के साथ लिखेंगे. फिर सेपरेट लिखने तो यहाँ लिख दो. लाइन ऐड करके भी ये लिख दो. फिर the 5 ठीक है बॉयज आप सभी यहाँ से. Yes. the 5 years old son of कोई व्यक्ति हो सकता है of Mr. XYZ a renowned businessman या फिर एक reputed businessman. ठीक है बताना पड़ेगा ना पहले कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो. was kidnapped. 5 साल का बच्चा. याद रखिए, ध्यान रखिए इस नंबर के ऊपर. 5 साल का बच्चा XYZ पर्सन, एक बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन, किडनैप किया गया है 15 अक्टूबर शाम 6 बजे. कुछ भी या फिर जो भी बताया तो जरूरी है जिसमें यहाँ समझ आ रहा सभी को. was kidnapped past. उसके बाद ये भी देख सकते हो कहां से किडनैप किया गया. पूरा मेंशन कर सकते हो. was kidnapped कहां से? from outside. बाहर से. कहां से? बाहर से. कहां से लगा था वो? of a local school. ग्रामीण क्षेत्र का कोई स्कूल के बाहर से या फिर आउटसाइड. और लिख दीजिए ऑफ द. और का नाम कोई भी. ठीक है मान लीजिए नेहरू पार्क के पास से किडनैप हो गया. फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द नेहरू पार्क. बाहर निकला था जॉगिंग करती. उधर ही जॉगिंग उसको उठाने के साथ चलो उधर जॉगिंग करते हैं. come to the point. outside of the Nehru Park. वो भी दिन दहाड़े बिल्कुल. in broad daylight. yesterday. बिल्कुल अच्छे से दिन की रोशनी. सूर्य निकला और चमचमाती धूप तो नहीं कहेंगे. starting of sun rays. in broad daylight yesterday. full stop. अब वही the kidnappers have demanded a ransom of 1 crore. 50 lakhs में काम चला रहा है. सर मैं कितना बोला करेंगे सर? in more than 35 crores. 1 करोड़. आपको लगता है कितना देंगे? $5,000. जो बच्चे परेशान करते हैं पेरेंट्स को बोलेंगे कि ले जाओ. वैसे ही परेशान करते हैं. The kidnappers have demanded
किडनैपर्स हैव डिमांडेड रैंसम। देखिए रैंसम का मतलब होता है क्या, ये समझना जरूरी है। रैंसम बोलिए या फिर इसको रिडीम बोलिए, दोनों का मतलब होता है फिरौती, यानी कि बंदी को छुड़ाने के लिए दी गई राशि को बोलते हैं रिडीम। ठीक है, a total of amount that is being given to free the hostage person, okay, to be free the hostage person, यानी कि hostage मतलब क्या होता है, बंदी। एक बंदी व्यक्ति को फ्री करने के लिए जो अमाउंट दी जाती है इसको रीडिंग रैंसम बोलते हैं। A total of amount is paid to getting free a hostage person, ठीक है। तो a ransom of 1 करोड़ या 50 लाख जो भी, इससे कम तो क्या लेगा, 1 करोड़ from the child's father, बच्चे के पिता से बोला इतना पैसा दे दीजिए, ले जाइए अपने बच्चे को। अब सिचुएशन बहुत पैनिक क्रिएट करने वाली, यस, तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, द इंसिडेंट हैज क्रिएटेड पैनिक इन द सिटी। सबके पेरेंट्स को चिंता होगी कि हमारे बच्चे को उठा ले, हैज क्रिएटेड बस इतना ही लिखेगा वो, ज्यादा लिख लेते हो। उसके बाद लिखेगा कि ABC द प्रेस रिपोर्टर, ओके, ऐसे लिखेंगे। मोहन कुमार, अमित कुमार जो भी है, सुनील कुमार, राजेश कुमार, प्रेस रिपोर्टर, जो भी नाम हो वो ऐड कर देगा इसके अंदर, ठीक है, क्लियर? यस सर। तो ये रहा हमारा बिजनेसमैन के साथ किडनैप करने के बारे में रिपोर्टिंग और पूरी सिचुएशन से 40 मिनट से रिपोर्ट हो गई। अब देखिए यदि कोई रिपब्लिक डे, देखिए अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, वन मोर मान के चलिए कि नर्सेज स्ट्राइक पे, नर्सेज ने स्ट्राइक कर दिया क्योंकि वो हायर वेजेस चाहती है। लिसन टू मी केयरफुली, ये सिर्फ एक ही दिन में तो पूरा होना है, तो आज फोकस कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको रिपोर्ट चाहे हम 10, 20, 30, 40 कितनी लिखवा लें, पेपर में तो डिफरेंट ही मिलेगी, ठीक है, डिफरेंट ही मिलेगी। हम सिर्फ आपको पैटर्न, ब्लूप्रिंट, आइडियाज, बेस और वे ऑफ राइटिंग, वर्ड लिमिट ये तो बता सकते हैं, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो आइडियाज आपको मिल गए। तो ध्यान सुनिएगा कि यू आर अ प्रेस रिपोर्ट, भाई आप एक प्रेस रिपोर्ट, ठीक है, एंड यू वेंट, आप चले गए एक हॉस्पिटल एंड फाउंड, और वहां मिला आपको कि द नर्सेज वर ऑन स्ट्राइक, वो सब हड़ताल पे थे। तो तुरंत मेंशनिंग द डेट एंड कॉज ऑफ देयर स्ट्राइक, मेंशन कीजिए उनकी हड़ताल करने की वजह और तारीख कि कब वो हड़ताल पर थी, स्टार्टिंग जो डेट थी। उसके बाद गिव a stable title also and prepare a report in about 40 words and to be printed for publication in your newspaper। स्टेटमेंट ऐसी ही मिलेगी आपको, इससे अलग नहीं मिलेगी, I'm quite sure, ऐसा ही होगा कि give a stable title, mentioning the date, region, cause, details, okay, और prepare या write a report in 40 words to be printed in the school magazine, to be printed for publication in the newspaper, ऐसी ही मिलेगी आपको। टाइटल क्या बनाओगे, नर्सिंग ऑन स्ट्राइक, नर्सिंग, अब टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल बनेगा ये, स्ट्राइक मतलब होता है हड़ताल पे चलेगी वो, और रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, आउटलाइन लगा लेना यहाँ पर, फिर आप क्या लिखोगे कि द नर्सेज ऑफ XYZ हॉस्पिटल वर ऑन एनलाइटनिंग स्ट्राइक, एक हल्की सी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हल्की सी हड़ताल पर है, नॉर्मल सी हड़ताल पर है, एक कैजुअल वे में है, ऐसी बात नहीं है। तो द नर्सेज ऑफ XYZ हॉस्पिटल वर ऑन एनलाइटनिंग स्ट्राइक। उसके बाद क्यों स्ट्राइक पर हो, दे वर प्रोटेस्टिंग, विरोध कर रही थी, दे वर, आर मत लिखना,
पास्ट ओनली पास्ट। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कोई वजह हो सकती है, सैलरी बढ़ाने की वजह हो सकती है भाई। दे वर प्रोटेस्टिंग, वो विरोध कर रही थी अगेंस्ट द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द अथॉरिटीज। यस, यानी कि जो अथॉरिटी है उनका एटीट्यूड इतना इंडिफरेंट हो गया है, मतलब इतना डिसइंटरेस्टेड वाला हो गया है, इतना उदासीन वाला हो गया है। किस वजह से? टुवर्ड्स देयर डिमांड फॉर हायर वेजेस। उनकी डिमांड थी हायर वेजेस की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, माने नहीं, उदासीन हो गए तो स्ट्राइक कर दिया उन्होंने। और स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है? द पुअर पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट्स जो भी मरीज जो भी वहां पर वर टू सफर अ लॉट ऑफ ट्रबल, बड़ी कठिनाई से गुजरना पड़ता है उनको। लेकिन दे हैव डिमांडेड या दे हैव थ्रेटन्ड, दे हैव वार्नड टू इंटेंसिफाई द स्ट्रगल, टू इंक्रीज द स्ट्रगल, टू कीप द स्ट्रगल इफ देयर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। यदि उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई, यदि उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो स्ट्राइक और बढ़ेगी, पेशेंट यूं ही पीड़ित रहेंगे, यूं ही प्रॉब्लम में रहेंगे। समझ रहे इस बात को? पहले कहा आपने कि इस हॉस्पिटल की नर्सेज स्ट्राइक पर हैं। क्यों? वे प्रोटेस्ट कर रही हैं, विरोध कर रही है, रेजिस्ट कर रही हैं, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो उनकी मांग को नहीं मानती, सैलरी बढ़ाना चाहती है। अब जो वो पेशेंट लोग बेचारे सफर हो रहे हैं, ठीक है, और नर्सेज ने थ्रेटन किया है कि और बढ़ाएंगे और इंटेंसिफाई करेंगे। इंटेंसिफाई का मतलब होता है शार्पन, जिसको आप एनहांस बोल देते हो, बढ़ाएंगे किस चीज को? अपने स्ट्रगल को और बढ़ाएंगे। इफ देयर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, यदि उनकी मांग को नहीं माना गया। नीचे क्या लिखोगे? अमित कुमार, हाँ आज इसलिए लिखेंगे ना कि प्रेजेंट की बात चल रहा है, स्ट्राइक अभी तक। The patients were some, हाँ देखिए, poor patients were to suffer a lot of problem। were to का मतलब होता है पीड़ित थे, यानी कि पीड़ित हुए, परेशान हुए, दुखी थे। poor patients were to suffer, ठीक है ना, a lot of trouble, बड़ी समस्याओं के साथ कभी। और उन्होंने धमकी भी दे दिया, नर्सिस ने वार्न भी कर दिया। थ्रेटन, THREATENED, द नर्सिस हैव थ्रेटन्ड, वो धमकी दे चुकी है कि टू इंटेंसिफाई करेंगी देयर स्ट्राइक को, देयर स्ट्रगल को, इफ देयर डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। मैंने कहा था ना कि द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज द नरेशन ऑफ द इवेंट विच टुक प्लेस इन पास्ट। रिपोर्ट का मेन हिस्सा पास्ट में होता है, वर्तमान तक सोल्यूशन नहीं हुआ है तो फिर लिखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे यदि मांग स्वीकार नहीं की गई थी तो फिर वो स्ट्राइक पर थी, नहीं की जाएगी, अभी नहीं होती है तो स्ट्राइक पर रहेंगी। यस, ऐसा होना होता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है घर से, मैं आपको बता देता हूँ, टाइटल समझा देता हूँ। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख सकते हैं। Republic Day celebration. The Republic Day celebration was celebrated. The Republic Day was celebrated in your city. In your city, XYZ stadium. जो भी लिखना चाहो। तो उसके बाद वही है, राइट अ रिपोर्ट इन 40 वर्ड्स टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर। तो उसमें आप क्या लिखोगे कि देखिए सेलिब्रेट किया गया हमारे शहर में, हमारे शहर के XYZ स्टेडियम के अंदर हुआ है सब, और स्टेडियम पर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो चीफ गेस्ट थे, जो हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर कह लीजिएगा, और उन्होंने जो पुलिसमैन थे या फिर होम गार्ड्स थे या फिर जो NCC कैडेट के जो भी ट्रेनिंग होते हैं, ओके, अलग अलग स्कूल के जो NCC कैडेट्स के जो आए हुए थे बच्चे, उन्होंने परेड में हिस्सा लिया, ठीक है। और जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने जो नेशनल फ्लैग उसको हॉइस्ट किया, और मैंने भी हिस्सा लिया। नरेटर बोलता है मैंने भी हिस्सा लिया, पास्ट में बोला मैं भी हिस्सा लेके गया हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यानी कि आई आल्सो टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, ठीक है। आई sang a patriotic song, मैंने भी एक सॉन्ग गाया था। Many colorful items were presented on the stage, yes। और चीफ गेस्ट ने पर्टिकुलर कांग्रेचुलेट किया पुलिसमैन को और होम गार्ड्स को, NCC कैडेट्स को,
उनके परफॉर्मेंस के लिए उसको पर्टिकुलरली कॉन्ग्रेचुलेट किया। और जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने प्राइजेस भी दिए उनको जिन्होंने कल्चर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। यस, और अपने लास्ट स्पीच में बोला कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। इन हिज लास्ट स्पीच ही एडवाइज पीपल टू बी यूनाइटेड एंड वर्क फॉर द कंट्रीज प्रोग्रेस, और देश के हित के लिए काम करना चाहिए, हमको मिलकर रहना चाहिए, इस प्रकार की बातें की। इसमें से आपको सिर्फ 40% निकालना। In his last speech, In his last speech he advised people to be united and work for the progress of the country. एक सिंपल सी बात है, मिलकर रहो, देश की भलाई का काम करो, ऐसा बोल देना लास्ट में। तो 41 से निकालने हैं, आई थिंक दैट 80 के आसपास बोल दिया मैंने, तो 40 निकाल तो इधर से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद न्यू टॉपिक आप करेगा, फिर आई थिंक दैट जो भी रहेगा नोट्स मेरा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप रनिंग एंड ऑल राइट। थैंक यू।